exciting is it to have the playoffs here in Delhi? So in the capital city, in this glorious city, how exciting is it to have the playoffs here? Two things. I mean, Delhi is the heart of the country, and we have not been here for some time, and so I think it's a very strong affirmation that we want to be in Delhi again and again, to be doing the finals here. Also, it has been made possible by the superb performance of the Dabang Delhi, Yeah. and it will really give them a chance to say that they're a very, very strong sports team for the national capital. It is competitive for sure on three indicators. One is the closeness of the matches. Second is the brilliance of individual performances, and spread across all playing positions, but very strong for new young players. So and young players. I mean, we are seeing the luminaries of the league. All of them are very young people. There are some veterans. There are some teams with veterans, but the captains are very young folks. Matches which have been for the full 108 matches of the league round, the matches which were decided by a difference of 5 points or less, that's about 47% of the total number of matches. Matches which have been decided in the last 90 seconds, they're about 27% of the 108 matches. And of course, the great innovation was the tiebreaker, which I think really helped us to bring a binary value into play, that either you win or you lose, and that's what all the sport is about. So I think it has been quite rewarding in the sense that the format initiatives of PKL 12 are going to be here to stay, and we'll build upon them in coming seasons. Most important is the return of the Raider, in the sense that we had seen, I think we had seen it was a trend which became a sort of very fundamental principle of the match. Defense systems were very prominent, and it was very clear that teams were thinking more about their defense. This time in the stellar performances by Raiders, I think if you look at the top 4 Raiders, they're averaging more than 10 rating points per match, which is like almost a super 10 in every match. When we started off the league just 12 seasons in 2014, we thought getting to the 10-point threshold for a Raider was a very, very big achievement. That's why the nomenclature Super 10. But we have got Raiders who are generally capable of delivering magnificent 20s. And it's a development which Kabaddi is a game, it's a unique contact sport which balances defense and offense, which defense is the only contact sport. But the heart of the sport always, and to the extent we have such a magnificent young batch of Raiders who are going to be around for some time. It's PKL 12 was, I think, very demonstrative of what the potential of the sport is. Of course, the Raiders will have to continue thinking. They have to also evolve, because defense will definitely catch up.
The defense is bound to catch up with them in a couple of seasons at the most. And then we'll go through the cycle again. But for now, the season is, I think the return of the Raider, the role of the Raider is absolutely at the fore for PK 12 matches. बिल्कुल भाई, फोकस तो करना पड़ेगा, नहीं तो कल अपने घर पे पाएंगे तो अच्छा करेंगे। जो चेन्नई 5 हार हुई हैं तो दिल्ली में आके कम बैक भी करा है, और जो टीम का रिदम था जो नीचे थोड़ा हौसला डाउन जा रहा था तो वहाँ आगे थोड़ा अप भी हुआ अपना, और सभी बच्चे रेड हैं, डिफेंसर सभी अच्छे फॉर्म में हैं। कोशिश करें कि भाई फाइनल खेलना है, फाइनल खेल लेगा, फाइनल जीते हैं। देखिए भाई, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा मोमेंट था और जीते, और बीच में जो हमारे मेन प्लेयर थे नितिन धनखड़, उसको इंजर्ड हो गए थे, तो उसकी वजह से भी हमारा मोमेंटम टूटा और काफ़ी क्लोज मैच हुए। अगर वो होता तो हम टॉप 4 में आ सकते थे, पर नहीं आए, तो खुश है हम टॉप 8 में भी आ गए। तो उम्मीद है ये मोमेंटम बना रहे और आने वाले मैच में जीते भाई। एज ए कैप्टन कुछ बता दो टीम को, मोटिवेशन, कुछ फ्रेजेस, कुछ मोटिवेशन तो यही है भाई, कोच साहब और यही बोलते हैं हम भी कि खुल के खेलो, अपना बेस्ट दो और जीतने की कोशिश करो। हाँ भाई, जो कल का मैच था सबसे बड़ी गलती तो वही हुई, नहीं तो आज यहाँ नहीं वहाँ उनके पास होते वो बहुत बड़ी गलती है टीम की। यूपी योद्धा ने हमारी पार्टी खराब कर दी, लेकिन अभी भी हमारे पास चांस है प्ले इन से प्लेऑफ में जाने का, वहाँ से सेमीफाइनल में जाने का। तो अच्छी प्लानिंग करके आएंगे जिसके साथ भी मैच होगा, और कोशिश करेंगे कि नीचे से ऊपर तक का सफर तय करें। यही था, कोच साहब ने बोला था भाई मैच तो कंटिन्यू आ रहे तो खुल के खेलो, कोई बात नहीं, 18 मैच हार जाएगा तो खुल के खेलो, इसलिए अच्छा खेली पूरी टीम और आगे भी अच्छा खेलेगी। विल स्टार्ट विद यू, टेबल टॉपर्स टीम की वैसे पुनेरी पलटन ग्रेट टीम वर्क, ग्रेट रेजिलियंस दिस ईयर, सबको लग रहा है कि दिस इज द टीम टू बीट। अब जो मोमेंटम आपने बनाया इतने दिनों में, वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करना कितना इंपॉर्टेंट होगा, और टॉप स्पॉट पे फिनिश करने का एडवांटेज कितना बेनिफिशियल है पुनेरी पलटन के लिए? देखो, टॉप मतलब टीम फर्स्ट में तो बनी थी हमारी, बट लास्ट के जो 2 मैच थे वो हमने नए प्लेयर्स को मतलब मौका दिया था कि नए प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है, और उनकी पोटेंशियल जानना भी इम्पोर्टेंट होता है हमें कि ये अगले सीज़न के लिए कैसे कर सकते हैं, और आने वाले मैच में जो प्रेशराइज मैच होते हैं प्लेऑफ्स में, उसमें उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है, वो चीज़ें देखने भी ज़रूरी होती है। ओवरऑल देखने के लिए जाएंगे तो लीग में टीम ने बहुत अच्छा खेला टीम, और सबने खुद का रोल निभाया टीम में मैट के ऊपर, और मुझे लगता है जो हमने चेंजेस करके प्लेयर इन 7 में भी लिए थे, उन्होंने भी उनका खुद का रोल अच्छे से निभाया था। तो वही है कि टीम में सबका एक हिस्सा रहेगा मुझे लगता है मैट पे आने के बाद, तो वो टीम मुझे लगता है 100% विन तो होगी। तो वही हमारा सफ़र 18 मैचों में अच्छा रहा, सबने खुद का हिस्सा दिया टीम के लिए मैट पे आने के बाद, और मुझे लगता है हमने अभी टेबल टॉपर फिनिश किया है। एडवांटेज तो है टेबल टॉप फिनिश करने का। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तैयारी तो चल रही है, और पिछले दोनों मैच जो हुए थे दोनों टाई ब्रेकर पे गए थे, और एक तो गोल्डन रेड तक गया था, तो मैच तो काफ़ी अच्छे हुए थे दोनों के। अब क्वालिफायर्स है, उसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है, और कोच साहब ने भी अच्छी प्लानिंग बना रखी है, और उसी के हिसाब से खेलेंगे। कुछ अलग दिखेगा इस बार मैच पे कंपेयर टू द लास्ट 2 मैचेस? नहीं, अलग तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा ही करेंगे। पिछले दोनों मैच भी काफ़ी अच्छे खेले थे, जब टाई ब्रेकर हुआ तो मैच अच्छे ही खेले दोनों टीमों ने, तो मैं तो यही बोलूँगा ये मैच भी अच्छा ही होगा। इस बार तो ट्राई ब्रेकर नहीं चाहिए ना, वो तो टाइम बताएगा। आने की प्लान कर रहे हो? हमारा स्टार्टिंग में जैसे मोमेंटम नहीं बन पाया था, हम कंटिन्यू 4 मैच लॉस हुए थे, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे टीम ने अच्छा किया, मोमेंटम में आए, और वो मोमेंटम अभी तक जारी है, इसीलिए हम आज टॉप 4 में हैं। हम इसको यही सोचेंगे कि मतलब इसको कंटिन्यू ही रखें, मोमेंटम को टूटने ना दें। एब्सोल्युटली। और तेलुगु टाइटंस के बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो भी फॉर्म में है। हाँ, काफ़ी अच्छी टीम है, टॉप 4 में है, कंटिन्यू मैच जीत रही है, तो मुकाबला काफ़ी अच्छा होगा। देखो, लास्ट ईयर तो हमारा बैड लक था जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जो लास्ट ईयर रह गया तो वो इस बार कर रहे हैं, और कोशिश है ऐसे ही करते रहें, अपनी टीम को और ऊपर लेके जाएं। और कोच साहब अच्छी प्रैक्टिस करवाई है और अच्छी कोचिंग कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा हमें मिल रहा है काफ़ी। और भरत है हमारी टीम का मैन राइडर है, अगर वो फॉर्म में है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और अगर वो फॉर्म में नहीं होगा तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर आप फॉर्म में हो,
हाँ बिल्कुल फॉर्म में भाई। आप रेडी हो? हाँ कबड्डी के लिए ऑलवेज रेडी भाई।